Good morning everyone. How are you? After a long period of time, we all are interacting with each other. I hope you all be all right at your home. And as I discussed with you, you are having some doubts in chapter 2 that is related to number system. So here we will discuss about the number system. So student, now your examination is going to be start. So what you have to do, you have to pay attention on your revision part. Fine? So we'll discuss some important top questions over here, and in this chapter we will discuss how many types of number systems, and we will try to know how we have to solve different types of number system. Is that clear? So welcome to my class. Student, we have chapter number 2, and that is your number system. That is your number system. Just pay attention everyone. Now in number system, what we have to do? First thing, we have different types of number systems in computer. Clear? First one, we have binary number system. What we have? Binary number system. Second one, we will discuss about the decimal number system. Decimal number system. First I will complete all the number system, and after that I will assign some questions, means extra questions to solve, to practice, and you can go with your chapter also, because there are so many questions are related. There are so many questions are already given related to number system. If have any doubts, you can message me. Fine? So here I am telling you how many types of number system. Basically we have binary number system, decimal number system, third one octal number system, and last one we have hexadecimal number system. What we have? Hexadecimal number system. Now student, we have 4 types of number system, in which we have first number system, that is your binary number system, second one decimal number system, third one octal number system, and last one we have hexadecimal number system. Of course, now I am going to tell you the importance of number system. Student, as we know that number system, basically we use the number system to count the number. Fine? But in computers, computer understand only computer language. Fine? Means that is in the form of 0 and 1. So we have different types of techniques, in which techniques we will see how we can calculate or how we can solve the different types of number systems. Fine? So in which first we have to study about, first we have to read about the binary number system. Is that clear? What we have first number system? We have first number system, that is your binary number system. Students, just pay attention and try to understand. Binary number systems are those number systems which will come in the form of 0, 1 or 1, 0. Means always the number of combination will come in this type of number system in the form of 0, 1 or 1, 0. You can say 0, 1 or 1, 0. Fine? Supposed to be, if I write 1, 0, 1, 1. So you will see the number of combination I have given in the form of 0, 1 or 1, 0. Next I am going to write 0, 0, 1, 0, 1. So all are the binary numbers. How you will find out these numbers are binary number systems? So first thing, the first identification I am telling you, first thing, the whole number or the number of combination will come in the form of 0, 0 or 1, 0. And important part, that is your base. That is your base.
base will always come 2. The base will be there 2. Means binary number systems are those types of number systems where the number will come in the form of 1 0 or 0 1 and the base will be 2. Base will be 2. Are you getting my point? So what is the meaning of binary number system? Binary number system is such type of number systems where the number of combination, where the number will come in the form of 1 0 or 0 1 and the base will be always 2. Base will be always 2. Is that clear? What I am telling you कि बाइनरी नंबर सिस्टम्स वो नंबर सिस्टम्स होते हैं जहां पे आप हमेशा क्या करोगे, जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पाओगे, जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे आपके, दैट विल बी ऑलवेज कम इन द फॉर्म ऑफ 1 0 और 0 1 और हमेशा इसका बेस क्या होगा, वो 2 होगा. क्लियर है? बेस क्या होगा? 2 होगा. नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू राइट वन क्वेश्चन एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन. उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको समझ लो कि कन्वर्ट द बाइनरी नंबर सिस्टम. नाउ आई एम गोइंग टू डू द कन्वर्जन. ओके, आपको क्या करना है, इसमें कन्वर्जन करना है. और कन्वर्जन कैसे करते हो आप? क्वेश्चन मेंशन होता है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, into decimal number system. So we have first conversion and that is your convert the binary number system into decimal number system. अब binary number system यहाँ पे दिया गया है. Just pay attention. Binary number system क्या है? 1 0 1 1 and base क्या होगा? 2 होगा. The base will be always 2. तो जब number system है वो क्या हो गया? Binary हो गया. अब एक सपोज करो कि मैंने एक क्वेरी डिजाइन कर दिया और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मान लो मैंने x लिख दिया और यहाँ पे बेस दिया गया है 10. तो बेस 10 का मतलब हो गया कि ये डेसिमल नंबर है. क्या है? डेसिमल नंबर है. मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया? क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है? 10 होता है. क्या होता है? 10 होता है. तो देन आई विल कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स. फर्स्ट यू हैव टू पे अटेंशन हाउ वी कैन कन्वर्ट the binary number system into decimal number system. Okay, basically हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नंबर सिस्टम लिया है और ये नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम. इज दैट क्लियर? इट्स योर बाइनरी नंबर सिस्टम and in this number systems what we have to do, we have to convert this number system into decimal number system. क्लियर है? अब ध्यान से समझो इसको कैसे करना है आपको. ये तो एक क्वेश्चन हो गया, मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा इसका कैसे करना है इसको. ठीक है, अब आपके पास एक नंबर सिस्टम मिल गया 1 0 1 1 और बेस क्या है इसमें? 2 है. तो बेस 2 का मतलब ये हो गया कि ये हमारा नंबर सिस्टम हो गया. क्लियर? ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया. अब इस बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें करना क्या है? वी हैव टू लर्न अबाउट द मेथड्स हाउ वी हैव टू कन्वर्ट. सो द कन्वर्जन मेथड इज दैट we have two sides. Just pay attention. This is called, जैसे आप मैथ्स को जब सॉल्व करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आते हैं. लाइकवाइज जब नंबर सिस्टम्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दिस इज कॉल्ड MSB एंड दिस इज कॉल्ड LSB. इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट और इसको क्या कहते हैं? लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट. मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट और लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट. क्लियर है? मींस इस साइड को हम MSB कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? LSB कहेंगे. दिस इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट एंड दिस इज योर लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट. क्लियर है? अब इसको देखो कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं. वी हैव क्वेश्चन 1 0 1 1. फाइन. 1 0 1 1 और इसका बेस क्या है? 2 है और इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है? इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में. सो वी हैव 1 0 1 1 base 2 and conversion will come in the form of decimal. It will come in the form of decimal. So what we have to do, आपको क्या करना है? MSB साइड से just pay attention. MSB साइड से एक एक डिजिट को बाहर निकाल लेना. We will extract the first digit. What is the first digit? We have 1. What we have? 1.
और इस डिजिट को, इस नंबर को इसके बेस से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? इसके बेस से मल्टीप्लाई करना है। सी हाउ आई एम गोइंग टू डू। 1 वी हैव फर्स्ट डिजिट्स 1 इंटू, और बाइनरी का बेस क्या है? 2 है, सो वी विल मेंशन 1 इंटू 2 प्लस करते हुए जाना है हमें। 1 इंटू 2 प्लस सेकेंड डिजिट क्या है हमारे पास? 0। सेकेंड क्या है? 0। अगेन वी विल डू 0 इंटू 2 प्लस थर्ड 1 इंटू 2, हमेशा बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर हम लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है? 1 है, तो वी विल मेंशन 1 इंटू 2। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है अपने पास, तो हम लोग प्लस नहीं करेंगे। जस्ट पे अटेंशन स्टूडेंट, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द ईच एंड एवरी डिजिट्स फ्रॉम दिस नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? 1 है। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 1 इंटू 2। सबसे पहले हमने क्या कर दिया? 1 इंटू 2 प्लस फिर 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है इसमें, इसलिए हम लोग प्लस नहीं करेंगे। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? एनीवन? इफ हैव anyone have any type of confusion, then you can tell me. Fine? अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या करेंगे हम लोग? We will place power. What we will place? Power. तो पावर हम हमेशा LSB साइड से शुरू करते हैं। क्लियर है? यहां से शुरू करेंगे हम लोग 0 1 2 3, हमेशा बेस पे पावर अपना प्लेस करोगे। ओके? 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 0 1 2 और 3। क्लियर है? तो 0 to 3 कितने नंबर्स हो जाएंगे? 4। कितने डिजिट्स हो जाएंगे? 4। 0 1 2 3, 4 डिजिट्स आ गए। और कितने डिजिट का है ये नंबर सिस्टम? 4 डिजिट का है। क्लियर है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 1 2 एंड 3। अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो। अगर किसी नंबर पे पावर 2 to the power 3 है, क्या है हमारे पास? 2 to the power 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 2 का 3 टाइम्स कैलकुलेशंस। कितने टाइम मल्टीप्लीकेशन करोगे? 3 टाइम्स। तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। आउटपुट क्या होगा हमारे पास? 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 8 1 जा 8। 8 का जब 1 में मल्टीप्लीकेशन करोगे देन यू विल गेट 8। 8 1 जा 8 प्लस, एनी प्रॉब्लम इसमें? एनीवन? प्लस किसी भी नंबर पे पावर अगर कुछ भी हो और मल्टीप्लीकेशन 0 से करना है तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा? 0। देन इन दैट केस नो नीड टू कैलकुलेट, आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 1 इंटू 2 टू द पावर 1। जब 2 टू द पावर 1 मीन्स 2 1 जा 2 एंड 2 का 1 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्लियर है? आउटपुट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। नाउ स्टूडेंट पे अटेंशन ऑन दिस। यहां क्या है? 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। जब किसी नंबर पे पावर 0 होता है तो वहां उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1। वेन एवर यू विल गेट द पावर 0 ऑन एनी काइंड ऑफ नंबर, एनी टाइप ऑफ नंबर, यू विल गेट द वैल्यू ओवर देयर 1। तो जब किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो वहां उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो जब 1 हो जाएगा पूरा वैल्यू, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? 11 बेस 10। क्लियर है? 11 बेस 10 मिलेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया। क्लियर है? क्या हो गया? ये हमारा डेसिमल नंबर। अब ध्यान से समझो, डेसिमल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनका बेस 10 होता है और जिसमें जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस नंबर्स के आते हैं वो 0 to 9 के बीच में आते हैं। क्या होते हैं? 0 to 9 के बीच में। आई एम डिस्कसिंग अबाउट द डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी हम लोगों ने कंप्लीट किया। बाइनरी में मैंने क्या बताया? कैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर आर दोज टाइप्स ऑफ नंबर वेयर द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विल कम इन द फॉर्म ऑफ 1 0 और 0 1। हमेशा जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा, जो नंबर्स होंगे, जो डिजिट्स होंगे, वो आपके हमेशा नंबर्स जो यहाँ पे आएंगे वो 1 0 या 0 1 के फॉर्म में आएंगे। और बेस हमेशा क्या होगा?
2 होगा, बेस क्या होगा 2 होगा, तो इसलिए हमने ये बता दिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, इस नंबर्स में से जो भी हमारे पास है, मीन्स वी हैव बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है 1011 है, तो इसमें से एमएसबी साइड हो गया और एलएसबी साइड हो गया। एमएसबी के बारे में मैंने क्या बताया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और एलएसबी क्या है हमारे पास, लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो एमएसबी साइड से हम लोग क्या करेंगे, एक एक डिजिट को बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा डिजिट मिला हमको 1, और इसके बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 2 प्लस, अभी इस कैलकुलेशन को भूल जाओ, मैं बता रहा हूं फिर से, 1 इंटू 2 प्लस कर देंगे, क्लियर है। फिर दूसरा डिजिट क्या है 0, सो 0 इंटू 2, फिर प्लस, फिर हमने 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, इसके आगे कोई नंबर नहीं इसलिए प्लस हमने नहीं किया है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग पावर प्लेस करना शुरू करते हैं, क्लियर है। तो पावर हमेशा एलएसबी साइड से रिप्लेस करेंगे, कहां से करेंगे, इस साइड से। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, दिस इज द रूल, 0 1 2 एंड 3। सो 0 to 3 हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, 4 नंबर्स हो गए, क्लियर है। अब 2 to the power 3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 2 to the power 3 की वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि 2 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन, हाउ मेनी टाइम्स यू विल मल्टीप्लाई टू 3 टाइम्स, सो आई हैव गिवन 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 2 जा 4 2 जा 8, यू विल गेट 8, और जब 8 का 1 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। कोई दिक्कत है इसमें। प्लस किसी भी नंबर का कोई भी कैलकुलेशन हो, जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, एज यू नो दैट द आउटपुट विल कम 0, आउटपुट विल कम 0, प्लस 2 1 जा 2, और 2 का 1 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, 2 मिलेगा। प्लस इफ एनी नंबर इज देयर एंड द पावर इज 0, जब किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो वहां उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जस्ट पे अटेंशन ऑन दिस पॉइंट, हमेशा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 का जब 1 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1। अब इन सबको आपस में ऐड कर दो, 8 प्लस 2 प्लस 1, सो 8 प्लस 2 प्लस 1, आउटपुट विल कम 11। 11 क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर। तो हमेशा यहाँ पे बेस मेंशन करते हैं कि किस नंबर सिस्टम में हमने इसको कन्वर्ट किया है, और हमारे पास क्वेश्चन क्या था, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, और ये हमारा डेसिमल हो गया। फाइन। अब ध्यान से समझो, दूसरा जो नंबर सिस्टम है अपने पास, दैट इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम। वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम, decimal number systems are those types of number systems where the numbers will come between 0 to 9, हमेशा 0 to 9 के बीच में ये नंबर्स आएंगे, और यहाँ पे बेस हमेशा क्या होगा, 10 होगा। बेस क्या होगा, 10 होगा। जैसे बाइनरी में बेस क्या हो रहा था, 2 हो रहा था, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमेशा केवल 0 1 या 1 0 ही रह सकता, कोई और नंबर उसमें नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या है, 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम रख सकते हैं, क्लियर है। जैसे ये नंबर हो गया 1 और 1, क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझो कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी पे। डेसिमल नंबर सिस्टम्स में क्या हो रहा है, डेसिमल नंबर सिस्टम वे नंबर सिस्टम्स हैं जिसमें जो नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन या जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो बिटवीन 0 to 9 होंगे, 0 से 9 के बीच के होंगे, लेकिन बेस जो होगा वो क्या होगा, 10 होगा। तो जब भी इस तरह का नंबर सिस्टम देखोगे जहां पे बेस 10 होगा और जो नंबर्स हैं वो 0 to 9 के बीच में है, तो उस तरह का नंबर सिस्टम क्या होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। जैसे हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इस पे कैसे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कर सकते हैं। दूसरा, स्टूडेंट सपोज करो हमारे पास नंबर है 1 1 1 0 1 1 0 या 0 है, क्या है, 0 है, 0 1 1 1 0। अगेन द बेस इज गिवन 2, बेस इज गिवन 2। तो अब ये कौन सा नंबर सिस्टम हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। क्यों,
रीजन ये है कि इसका बेस 2 है और जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है वो किस में है, 0 1 में है या 1 0 में है। और फिर क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन मार्क भी बनाया जा सकता है या इसकी जगह पर हम एक्स भी लिख सकते हैं। और इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक कि यहाँ पे अगर बेस 10 दिया गया है तो इसका मतलब कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम का फॉर्मेट है और इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो अब इसको कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया, तो सबसे पहले यहाँ से एक डिजिट निकाल लो, तो 0 हो गया और इसका बेस क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 2 प्लस फिर दूसरा हमारे पास क्या हो गया 1, तो 1 इंटू 2 प्लस थर्ड वन वी हैव 1 इंटू 2 प्लस फोर्थ वन वी हैव 1 इंटू 2 प्लस एंड द लास्ट वन वी हैव 0 इंटू 2। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग प्लस नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? अब नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस द पावर। पावर कहां से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से, LSB। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4। अब देखो इसको कैलकुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे है 1 इंटू 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, सो द आउटपुट विल कम 8 एंड 8 1 जा 8 प्लस यहाँ पे 2 टू द पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, तो 2 2 जा 4 और 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 4। यहाँ पे 2 टू दी पावर 1 है तो 2 का 1 टाइम्स 2 1 जा 2। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो वहां उसकी वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन जब 1 को अभी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो आपका आउटपुट क्या होगा यहाँ पे 8 प्लस 4 प्लस 2, सो इट वुड बी 14 बेस 10। अब देखो 4 1 और 4 के कॉम्बिनेशन में आया ना, तो 0 to 9 के बीच में कोई भी अगर नंबर्स आते हैं तो वो किसके फॉर्म में होंगे, डेसिमल के फॉर्म में होंगे। किसके फॉर्म में होंगे, डेसिमल के फॉर्म में। और यहाँ पे 1 भी आ गया और यहाँ पे 4 भी आ गया। 0 to 9 के बीच का है ना नंबर, और यहाँ पे बेस क्या मिल गया 10, तो ये क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम। एनी प्रॉब्लम? अब ध्यान से समझो, अगर इससे पहले हमने जो सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो उसमें हमारे पास क्या था, 11 था। देख लो क्वेश्चंस क्या था उसमें भी, या अभी हमारे पास डेसिमल क्या है 14 है, यही है ना। अब अगर आपको चेक करना है कि जो आपका आंसर आ रहा है बाइनरी टू डेसिमल, स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव टू फाइंड आउट, इफ यू हैव टू चेक आउट योर आंसर इज करेक्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी टू डेसिमल और नॉट। आप बाइनरी से डेसिमल के बीच में जो कन्वर्जन कर रहे हो वो, या बाइनरी से डेसिमल में डायरेक्ट जो कन्वर्जन कर रहे हो वो डेसिमल का आंसर आपका सही है कि नहीं है, आप खुद ही इससे चेक कर सकते हो। कैसे? अब करना क्या है, क्या करना है इसमें, इसी डेसिमल नंबर को बाइनरी के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर दो। तो जैसे ही बाइनरी में कन्वर्ट करोगे ये बाइनरी के इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। मीन्स जब हम 14 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमको यही बाइनरी नंबर सिस्टम मिलना चाहिए। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास 14 है, अभी क्या आउटपुट आया था 14, तो 14 क्या है, 14 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसको कैसे आप राइट कर रहे हो, 14 बेस 10। और अगर यही कह दिया जाए कि आप इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या बेस दिया गया है यहाँ पे 2 का मतलब क्या हो गया, बाइनरी। क्या हो गया, बाइनरी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा सकता है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट, इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट। तो हमारे पास डेसिमल नंबर क्या है 14 है, यही है ना। और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब इसका तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसका मेथड क्या होगा, अलग हो जाएगा। जब हम बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं स्टूडेंट, तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको हम बाइनरी के बेस से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, बाइनरी के बेस से डिवाइड करते हैं। सो वी हैव 14, व्हाट वी हैव 14, और बाइनरी का बेस क्या है, टेल मी, बाइनरी का बेस क्या है 2 है। क्या है, 2 है। ध्यान से समझो, हम लोग इसमें डिवीजन सीखने जा रहे हैं अब हम लोग, क्लियर। अब इसको डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ रिमाइंडर को स्टोर करते हुए चलते हैं।
क्लियर है? यहाँ पे रिमाइंडर का रिकॉर्ड हम लोग स्टोर करते हुए चलेंगे। फिर 2 यहाँ लिखेंगे और 7 है हमारे पास, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब रिमाइंडर कितना बचा? 1, तो 1 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगेन 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब इस 1 को यहां प्लेस करने के लिए हम 0 प्लेस सकते हैं और इस 1 को एज इट इज प्लेस कर सकते हैं। एक काम और आप कर सकते हो, यहाँ पे 2 लिख के इस 0 को भी यहाँ प्लेस कर सकते हो, क्योंकि हमने उसमें 0 दिया था। तो ध्यान से समझो, किसी भी नंबर को अगर एज इट इज यहाँ प्लेस करना है तो यहाँ पे पहले 0 प्लेस कर दोगे आप, उसके बाद उस नंबर को मेंशन कर दोगे। फिर 0 को भी प्लेस करना है तो फिर हमने 0 लिख दिया नीचे, यहाँ पे 0 को स्टोर कर दिया। अब बॉटम टू टॉप राइट करते हैं। हाउ वी हैव टू राइट? बॉटम टू टॉप, दिस इज कॉल्ड बॉटम एंड दिस इज कॉल्ड टॉप। क्लियर है? बॉटम टू टॉप। तो बॉटम टू टॉप जब मेंशन करोगे देन यू विल गेट 0 1 1 1 0, और यही आपका बाइनरी नंबर था। क्लियर है? ये आपके बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। इसके इक्विवेलेंट हो गया, बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। फिर मैं दूसरा एक मेथड बताता हूं आपको, फिर से देखो इस पे। अब हम क्या करेंगे, कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम्स लेंगे, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसी डेसिमल को बाइनरी के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो जैसे मान लो अगर हमने दिया 1 0 1 1, बेस क्या दिया 2, और इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको? डेसिमल है। जस्ट पे अटेंशन एवरीवेयर। बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो मेथड मैंने क्या बताया आपको? 1 into 2। सबसे पहले इस साइड से एक डिजिट लेंगे, तो 1 और 1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 2। क्लियर है? पावर प्लेस करना शुरू करो राइट साइड से। 0 1 2 3, 0 to 3 कितने नंबर्स हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब ध्यान से समझो, 2 to the power 3 का मतलब क्या हो गया? आउटपुट विल कम 8, प्लस 2 to the power 2 का मतलब 4, और 4 का जब 0 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आउटपुट क्या होगा? 0 हो जाएगा। फिर 2 1 जा 2, प्लस किसी नंबर पे पावर 0 है तो वहां उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और 1 का 1 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 बेस 10। क्लियर है? अब इसी 11 बेस 10 को ध्यान से समझ लो स्टूडेंट, ये मैं कर दे रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया ना। अब इसी डेसिमल को हमको किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब 11 है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या मैंने बताया? 2 से डिवाइड कर देंगे। बाइनरी का बेस क्या है? 2, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा? 1 यहां स्टोर कर दो। क्लियर है? 1 यहां पे स्टोर कर दिया हमने, लिख दिया 1। अब दूसरा क्या है? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर रिमाइंडर 5 में से 4 निकाल दोगे तो कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 0, और इस 1 को एज इट इज प्लेस करना है यहाँ पे, तो नीचे 0 पहले प्लेस कर देते हैं हम लोग, 0 लिख के, और इस 1 को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है? फिर हम लोग बॉटम टू टॉप राइट करेंगे। बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे से ऊपर की तरफ जब जाओगे, बॉटम टू टॉप जब मूव करोगे, तो सबसे पहला नंबर कौन सा मिलेगा? 1। वेरी गुड। 1, फिर दूसरा 0, फिर तीसरा 1, फिर फोर्थ 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 बेस 2, और क्वेश्चन क्या था? 1 0 1 1 बेस 2। तो दोनों हमारे आपस में बराबर हो गए, दोनों इक्विवेलेंट है। इसका मतलब आपका बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी दोनों क्वेश्चन क्या है? सही है। इस तरीके से आप अपने आउटपुट को चेक कर सकते हो। सो यू आर गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट और नॉट। क्लियर है? तो आप कुछ प्रैक्टिस करोगे, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको थोड़ा हेल्प करूंगा, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू एंड हेक्साडेसिमल टू फाइन। ओके? तो आप इस तरीके से कैसे आपको हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, कैसे डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे, ये जो लास्ट 2 नंबर सिस्टम्स रह जाएंगे उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। अभी राइट नाउ यू ऑल विल गो थ्रू द प्रैक्टिस, where you will go through the
बाइनरी कन्वर्जन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। क्लियर है? अभी आपको ध्यान से समझना है, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। क्लियर है? मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं, उसको सॉल्व कर लेना और देखना कि आउटपुट आपको सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और आपको आउटपुट चेक करने का मैंने तरीका क्या बता दिया कि आप उस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो और उसी डेसिमल को फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, दोनों हमारे इक्विवेलेंट होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका आउटपुट क्या होगा? सही हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि अगर x में और बेस 10 दे रहा हूं तो ये क्या हो गया? डेसिमल हो गया। अगर मैंने किया है 00101 बेस 2 और यहाँ पे मैंने दे दिया फिर ये डेसिमल हो गया। हमने लिखा यहाँ पे 45, तो आप इसको क्या करोगे? बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे एक और मैंने क्वेश्चन दे दिया डेसिमल का, इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? बाइनरी में। क्लियर है? तो दो क्वेश्चन को आपको बाइनरी टू डेसिमल करना है और दो क्वेश्चन को डेसिमल टू बाइनरी करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप you all will go through the practice. Thank you.